Welcome back to the aphorism series. In this video, we are going to talk about aphorism number 73. Aphorism 73 states types of acute diseases. Let us start by reading the aphorism. As regards acute diseases, they are either of such a kind as attack human beings individually, the exciting cause being injurious influences to which they were particularly exposed, excess in food or an insufficient supply of it, severe physical impression, chills, overheatings, dissipation, strains, etc., or physical irritations, mental emotions, and the like are exciting causes of such acute febrile affections. In reality, however, they are generally only a transient explosion of latent sora, which spontaneously returns to its dormant state if the acute diseases were not of too violent a character and were soon quelled, or they are of such a kind as attack several persons at the same time here and there, sporadically, by means of meteoric or telluric influences and injurious agents, the susceptibility for being morbidly affected by which is possessed by only a few persons at one time. Allied to these are those diseases in which many persons are attacked with similar sufferings from the same cause epidemically. These diseases generally become infectious, contagious, when they prevail among thickly congregated masses of human beings. Thence arise fevers, in each instance of a peculiar nature, and because the cases of disease have an identical origin, they set up in all those they affect an identical morbid process, which, when left to itself, terminates in a moderate period of time in death or recovery. The calamities of war, inundations, and famine are not infrequently their exciting causes and producers. Sometimes they are peculiar acute miasms which recur in the same manner, hence known by some traditional name, which either attack persons but once in a lifetime, as the smallpox, measles, whooping cough, the ancient smooth bright red scarlet fever of the Sydenham, the mumps, etc., or such as recur frequently in pretty much the same manner, the plague of Levant, the yellow fever of the sea coast, the Asiatic cholera, etc. इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन ने एक्यूट डिजीज़ेस को क्लासिफाई किया है और उनका क्लासिफाई करने का तरीका ये है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉजेटिव फैक्टर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन. अब इस हिसाब से दो मेन टाइप्स हैं. पहला टाइप जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है और दूसरा टाइप जो कि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है. यानी कि एक है जहाँ पे इंडिविजुअल अफेक्ट हो रहा है, एक है जहाँ पे सेवरल पर्सन्स आर गेटिंग अफेक्टेड. तो पहले हम इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज़ की बात करते हैं. ये किस चीज़ से ट्रिगर होता है? ये ट्रिगर होता है इंजूरियस इन्फ्लुएंसेस, जो कि एक पर्सन स्पेसिफिकली एक्सपोज्ड है किसी चीज़ से, जैसे कि खाने का बहुत ज़्यादा होना, एक्सेस होना, डेफिशिएंसी होना खाने की, फिज़िकल स्ट्रेस होना, मेंटल स्ट्रेस होना, किसी भी तरीके का स्ट्रेन होना, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स यानी कि या तो ओवरहीटिंग है या तो चिल्स है. ये जो इंजूरियस इन्फ्लुएंसेस हैं, इनसे अगर कोई इंडिविजुअल एक्सपोज्ड है तो ये हुए इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज़ेस. ठीक है. और ये जो इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज़ेस हैं, ये बेसिकली अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक ट्रांजिएंट इरप्शन है लेटेंट सोरा के. ठीक है. एक क्रॉनिक अंडरलाइंग इन्फ्लुएंस है ये लेटेंट सोरा, जो कि डोमिनेंट स्टेट में वापस चला जाता है अगर कि एक्यूट डिजीज़ ज़्यादा सीवियर ना हो और जल्दी से रिजॉल्व हो जाए. अगर वो जल्दी से रिजॉल्व नहीं होगी तो जो लेटेंट सोरा है वो डोमिनेंट स्टेट में नहीं जाएगा, वो एक डेवलप्ड सोरा में चला जाएगा. ये जो इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज़ेस हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट होती हैं एज अ ट्रांजिएंट इरप्शन ऑफ लेटेंट सोरा. अभी तक हमने सोरा नहीं पढ़ा, तो हम लेटेंट सोरा कैसे समझेंगे या डॉर्मेंट सोरा कैसे समझेंगे? तो पहले हम सोरा की बात करते हैं. सोरा क्या है? सोरा इज़ द नीड ऑफ द इंडिविजुअल, need of the organism, need of the organs, need of the tissue, need of the cell. ठीक है. जो भी हमें ज़रूरत है, बायोलॉजिकल जो नीड है हमारी, वो नीड ही सोरा है.
तो सोरा क्या है, हमारी बॉडी में डोर्मेंट स्टेट में प्रेजेंट है। मान लीजिए आपकी वो नीड फुलफिल नहीं हुई, तो जो सोरा है जो कि डोर्मेंट स्टेट में प्रेजेंट है वो एक्टिव हो सकता है। तो ये जो सोरा है ये बेसिकली एक क्रॉनिक म्याज्म है जो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है डोर्मेंट स्टेट में, और जैसे ही इसकी ससेप्टेबिलिटी, जैसे ह्यूमन की ससेप्टेबिलिटी होगी, अगर उसे वैसा कोई एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये एक्टिव स्टेट में आ जाता है। पर एक्टिव में आने से पहले इसकी एक स्टेट है जिसको हम लेटेंट सोरा बोलते हैं। अब तीनों का डिफरेंस समझते हैं कि डोर्मेंट सोरा क्या है, लेटेंट सोरा क्या है और एक्टिव सोरा क्या है। डोर्मेंट सोरा का मतलब हुआ इनएक्टिविटी है, अभी जो सोरा है वो सो रहा है, इन लिटरली वो एक स्लीपिंग फेज में है, ठीक है। डोर्मेंट का मतलब ये है कि देयर इज इनएक्टिविटी ऑफ समथिंग एज दो स्लीपिंग। अब लेटेंट की बात करें तो लेटेंट क्या है, लेटेंट अप्लाइज टू अ पावर और क्वालिटी दैट हैज़ येट नॉट कम फोर्थ, अभी तक आई नहीं है पर लेकिन इमर्ज हो सकती है, डेवलप हो सकती है। और एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि इट इज़ एक्टिवली प्रेजेंट, अब वो सोरा जो है वो एक्टिव कंडीशन में आ गया है। तो ये तीन मेजर डिफरेंस होते हैं। अब अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज़ में सोरा का कौन सा स्टेज देखते हैं हम, तो हम देखते हैं कि वो डोर्मेंट से लेटेंट स्टेज में आ जाता है। कहने का मतलब कि पहले जो सोरा था वो एक्चुअली स्लीपिंग मोड में था, ठीक है, इनएक्टिविटी थी उस समय। जैसे ही कोई सर्कमस्टेंस, कोई एनवायरमेंटल चेंज कुछ भी आया, चाहे वो खाने की कमी थी, खाने का एक्सेस था, टेम्परेचर में चेंजेस थे, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स थे, ओवरहीटिंग थी, चिल्स थे, स्ट्रेस था, चाहे फिजिकल चाहे मेंटल, कोई भी रीज़न रहा हो, कुछ भी इन्फ्लुएंस रहा हो, तो उस इन्फ्लुएंस की वजह से ये डोर्मेंट स्टेट लेटेंट स्टेज में चेंज हो गई। यानी कि लेटेंट स्टेज का मतलब क्या पढ़ा हमने, यानी कि कुछ भी जो कि डेवलप हो सकता है, जिसमें अब पॉसिबिलिटी आ गई है इमर्ज होने की कि अब ये सोरा में कन्वर्ट हो सकता है, एक क्रॉनिक म्याज्म का फॉर्म ले सकता है, ठीक है। पर साथ के साथ डॉक्टर हैनेमन ने इस एफोरिज्म में ये भी चीज़ लिखी कि एक्यूट डिजीजेस अगर बहुत शॉर्ट लिव्ड हो, जल्दी से ठीक हो जाएं, ठीक है, क्विकली, रैपिडली, तो ये जो लेटेंट सोरा है वापस से डोर्मेंट स्टेट में चला जाता है। अगर ये जो एक्यूट डिजीज़ है ज़्यादा सीवियर ना हो, जल्दी से रिजॉल्व हो जाए, तो जो अंडरलाइंग कॉज है, जो लेटेंट सोरा है, वो वापस से डोर्मेंट स्टेट में आ जाता है। कुछ एक्यूट डिजीज़ेज़ हैं जो मल्टीपल इंडिविजुअल को साइमल्टेनियसली अफेक्ट करती हैं, जैसे कि स्पोरैडिक और एपिडेमिक। अभी हमने पढ़ा इनके बारे में, रीड किया इंग्लिश में, अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। स्पोरैडिक का मतलब जब बहुत कम लोगों को, वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड बाय मीटियोरिक और टेल्यूरिक इन्फ्लुएंसेस एंड हार्मफुल एजेंट्स। एपिडेमिक डिजीजेस वो होती हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग, मैनी पीपल विद सिमिलर सिम्टम्स ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, पर्टिकुलरली इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, आर अफेक्टेड। बात करें एपिडेमिक डिजीजेस की, तो ये वो डिजीजेस हैं जो कि कॉन्टेजियस बन जाती हैं, यानी कि दे कैन स्प्रेड अमंग मासेस ऑफ पीपल। बहुत सारे कैलामिटीज़ जैसे कि वॉर्स, फ्लड्स, फेमाइंस, ये एक ट्रिगर होते हैं एक्यूट डिजीज़ के लिए। क्यों? वॉर्स की कंडीशन में क्या होगा, देयर वुड बी शॉर्टेज ऑफ एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि आपको सेम अमाउंट जो पहले आपको अपनी पॉपुलेशन को सर्व करना था, अब वो आपकी पॉपुलेशन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, राइट। एक जो आपके लिए बॉर्डर पे लड़ेंगे या दूसरी कंट्री में जाके लड़ेंगे, और एक जो पीछे रह जाएंगे। नाउ दिस शॉर्टेज ऑफ फूड, द डेफिशिएंसी ऑफ फूड, न्यूट्रिशन जो नीड है पेशेंट की, वो ट्रिगर होती है एंड दैट कॉजेज एक्यूट डिजीजेस। सेकेंड, फ्लड्स में भी बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, राइट। जब डिस्ट्रक्शन होगा, आपके पास खाना नहीं होगा, आपको प्रॉपर मील नहीं मिलेगी, हमें नहीं पता उस समय पानी की सप्लाई कैसे रहेगी, राइट। तो ऐसी कंडीशंस एक्यूट डिजीजेस को ट्रिगर करती हैं। तीसरा बोला उन्होंने फेमाइन, जब अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, तब भी आपके पास खाने को कुछ नहीं होगा। ऐसी कुछ कैलामिटीज़ हैं जो कि एक्यूट डिजीजेस को ट्रिगर कर सकती हैं, जो हमने इस एफोरिज्म में पढ़ा। अब हम इसका फुटनोट देखते हैं। द होम्योपैथिक फिजिशियन हु डज नॉट एंटरटेन द फोरगॉन कंक्लूजन डिवाइज्ड बाय द ऑर्डिनरी स्कूल
who have fixed upon a few names of such fevers, besides which mighty nature dare not produce any others, so as to admit of their treating these diseases according to some fixed method, does not acknowledge the names gall fever, bilious fever, typhus fever, putrid fever, nervous fever or mucus fever, but treats them each according to their several peculiarities. Subsequently to the year 1801, a kind of purpura miliaris, rudewonk, which came from the west, was by physicians confounded with the scarlet fever, notwithstanding that they exhibited totally different symptoms, that the latter found its prophylactic and curative remedy in belladonna, the former in aconite, and that the former was generally merely sporadic, while the latter was invariable epidemic. Of late years it seems as if the two occasionally joined to form an eruptic fever of a peculiar kind, for which neither the one nor the other remedy alone will be found to be exactly homeopathic. यहाँ डॉक्टर हेनेमन ने बताया कि होम्योपैथिक फिजिशियंस ने कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फीवर्स को रिफ्यूज़ कर दिया. दे रिफ्यूज टू अडेयर टू द कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फीवर्स, जो कि ऑर्डिनरी स्कूल के हिसाब से गोल्ड फीवर, बिलियस फीवर, टाइफस फीवर, प्यूट्रिड फीवर, नर्वस फीवर, म्यूकस फीवर था. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेम ऑफ द फीवर, यहाँ पे डॉक्टर हेनेमन बता रहे हैं कि होम्योपैथिक फिजिशियन मस्ट अंडरस्टैंड द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. पेशेंट की इलनेस का हर मैनिफेस्टेशन, हर यूनिक कैरेक्टर पता होना चाहिए. वी मस्ट नो अबाउट द पिक्युलैरिटीज़ ऑफ द पेशेंट्स इलनेस, रैदर देन कि वो किस फीवर से जूझ रहा है, उस फीवर का नाम क्या है. ठीक है, हमने नाम से पेशेंट को क्लासिफाई नहीं करना, हमने पेशेंट की इंडिविजुअलिटी से पेशेंट को ट्रीट करना है. अब यहाँ पे अगले पैसेज में डॉक्टर हेनेमन ने बताया कि कन्वेंशनल मेडिसिन जो है वो दो डिस्टिंक्ट डिजीज़ेस को भी कंफाउंड कर लेती है, जैसे कि स्कारलेट फीवर और पर्प्यूरा मिलियारिस, रूडवॉन्क, दोनों को उन्होंने सेम समझ लिया, डिस्पाइट कि उन दोनों के जो सिम्टम्स थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बहुत डिफरेंट थे. बट लेकिन जो ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर्स थे, जो फिजिशियंस थे, उन्होंने मिस्टेकनली उनको सेम समझ के सेम ट्रीटमेंट दिया, जिसके कारण से क्या हुआ, वो ठीक ही नहीं हुआ. आगे उन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया कि स्कारलेट फीवर के लिए बेलाडोना दी जाती है. क्यों? क्योंकि ये लाइक क्योर्स लाइक के प्रिंसिपल को फॉलो करती है, यानी कि आर्टिफिशियली वो वही चीज़ प्रोड्यूस भी कर सकती है. दैट इज़ वाई बेलाडोना वाज गिवन फॉर स्कारलेट फीवर और एकोनाइट पर्प्यूरा मिलियारिस के लिए. ठीक है, ये चीज़ जो थी ये हाईलाइट करती है कि इंडिविजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किस केस में क्या देना है वो देखना पड़ेगा, रैदर देन कि आप किसी भी फीवर में कुछ भी दे दो कि जस्ट बिकॉज पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर आपने फीवर की मेडिसिन दे दी. ये नहीं देखा कि वो फीवर के सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट उसमें क्या महसूस कर रहा है, क्या इलनेस आ रही है. ऐसे केसेस में एट द एंड क्या होता है, जब आप ऑर्डिनरी स्कूल को फॉलो करते हैं तो आप उस केस को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, एक कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसका फिर आप किसी भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करो तो वो ठीक नहीं हो पाता. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्म कर देता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस की. ठीक है, तो इसलिए हमें नीड है कि हम केयरफुल इवैल्यूएशन करें और इंडिविजुअलाइजेशन करें ताकि पेशेंट को हम क्योर कर सकें. एंड मोर ओवर जो ये पर्प्यूरा मिलियारिस था ये बेसिकली एक स्पोरैडिक डिजीज़ थी, वेयर एज स्कारलेट फीवर जो था वो एक एपिडेमिक था. ठीक है, पर क्या हुआ, कुछ सालों बाद हमने एट दी लेटर स्टेज ये ऑब्जर्व किया कि दोनों ओकेजनली जॉइन होके एक इरप्टिव फीवर बन गया, एक इरप्टिव काइंड ऑफ फीवर बन गया जो अपने आप में एक पिक्यूलियर काइंड था. और उसमें अब ना तो बेलाडोना काम कर रही थी और ना ही एकोनाइट. तो इसीलिए हमें होम्योपैथिकली सोचना चाहिए और पेशेंट को इंडिविजुअली ट्रीट करना चाहिए. That's all in the video. Thank you for watching.